तो क्या लगता है मार्केट अभी इस हिसाब से? माहौल बदल गया है, पिच टर्न करने लगा। अनसर्टेनिटी इज व्हाट वी डोंट लाइक। इक्विटी में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल रहेगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है ना, गोल्ड ऊपर होता है और इक्विटी मार्केट नीचे होता है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोगों का एक ही आता है कि मार्केट क्या लगता है। सो आई स्टार्ट विथ रमेश जी, आई स्टार्ट विथ यू, योर व्यूज ऑन आज के ये राइजिंग टैरिफ और इंटरनेशनल। सबसे बड़ा क्वेश्चन आई थिंक सब लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तो आपको क्या लगता है मार्केट अभी इस हिसाब से? ये सवाल हमेशा आता है एंड आज तक एक ही पर्सन है जिसने इस सवाल का कभी गलत जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो थे जेपी मॉर्गन, जो जेपी मॉर्गन बैंक Right. है, उनके फाउंडर। Okay. तो जब उन्हें बाजार के बारे में लोग पूछते थे कि बाजार क्या लगता, तो हमेशा राइट आंसर थे। वो राइट आंसर था, इट विल फ्लक्चुएट। इट विल फ्लक्चुएट, करेक्ट। तो मेरा भी वही आंसर है। On a more different note, we are going through interesting times. Correct. और जब ये लोग वर्ड interesting times बोलते हैं ना, तो it's a phrase to understand कि there are lot of things that you don't know. So we are saying हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं पता है। नहीं है, वैसे भी पता नहीं थी, अब हम acknowledge कर रहे हैं कि पता नहीं पता है। So we are going through interesting times. जो 21, 22, 23, 24 का जो फ्लैट पिच थी इंडिया में, एकदम फ्लैट पिच थी। जितना आप जो रिस्क लेते हो, जैसे कोई पूछ रहे थे एसएमई आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो टाइम था एसएमई आईपीओ, राइट? Correct. क्योंकि एकदम फ्लैट पिच में आप बाहर बढ़ो, बॉल को आगे स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पे जाओ, छक्का मारो। अब माहौल बदल गया है, पिच टर्न करने लग गई। और जब पिच टर्न करने लग जाती है तो गेम को अलग खेलना, बिकॉज द सेम प्लेयर जो फ्लैट पिच पे वर्क करता है वो टर्निंग पिच पे वर्क नहीं करता। नहीं। आई स्टॉप हियर फॉर नाउ, आई Okay. एक्सपैंड ऑन दिस लेटर। So I fully agree with sir. Essentially, what we've seen over the last 20 odd years is there are only two constants in the markets. One is volatility. I mean, you can't wish away volatility, right? राइट। So we did this exercise internally for our own consumption, wherein what we realized is अगर आप 2007 से लेके अभी तक का सेंसेक्स का डेटा देखेंगे, from 52 week high, there has not been even a single year wherein you've not seen markets correct, right? So just to give you some stats, so 0 to 15%, 63% of the time you've seen from 52 week high, we corrected anywhere between 0 to 15%, or 63% times. 15 to 30 was another around 26, and 11 was essentially wherein you had GFC and then you COVID, right, wherein we went beyond 30, right? But even with this sort of volatility, we've been able to create value. So there are two concepts. One is volatility. You would never be able to wish away volatility because there are so many participants in the market that some of these people would have differing views. There could be a situation wherein I like a stock, but then there'll be someone else in the market who would say, no, I don't like this name at this price, right? करेक्ट। बट करेक्शन के बाद रैली वापस आता है, तो जो 63% 0 to 15% का करेक्शन था, जनरली यू हिट अ न्यू हाई इन अ स्पैन ऑफ 3 months itself. ओके, That's been the frequency. When it's 15 to 30%, it takes you around 8-9 months to be able to kind of come back to a new high. So I don't see markets to behave any differently this time around as well. I mean, the idea would be, I mean, we've seen correction. You still have some of these names which have corrected. Ideally shouldn't have, because they're not dependent on tariffs, right? I mean, impact would not be to the extent that some of these other globally exposed companies would have. So I think generally whenever you get to have the situation wherein there's volatility, there's this uncertainty. I mean, uncertainty is what we don't like. Volatility we are okay with it because you get to make money when it is volatile, right? You would be able to find bargains. We think, I mean, long-term potential stays. I mean, you would still be able to create value. We've been able to do that over a longer period of time. Just that what you need to understand is the sort of run-up that we had during 2021 to 24 would be a little difficult to replicate because everything coincided. So I think people would have to understand that you need to moderate your return expectation now. And equity में पैसा बनेगा. I mean, if you're being prudent in terms of your research, if you're being prudent in terms of the way you want to evaluate these names, and it is possible to be able to create value, is what I would think. ओके, चिराग। एक्चुअली मेरे पास भी एक स्टैंडर्ड आंसर है, शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल रहेगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। बट दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर फॉर द Correct. मार्केट। मगर मार्केट है ना, हमेशा अच्छा ही होता है। कभी रिटर्न देखने के लिए अच्छा होता है, कभी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा होता है। मार्केट हमेशा अच्छा ही होता है। और अगर आपको 85,000 पे अच्छा लगा था तो 75,000 पे तो और अच्छा लगना चाहिए, है ना? अगर कभी 1 लाख होगा, कभी 1.5 लाख होगा, वही 2 लाख होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता। मगर 85,000 पे डालने से जो पैसा बनता तो 75 पे तो ज्यादा बनेगा,
इतना मुझे समझ में आता है। दूसरा के जब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी होती है ना, तब मार्केट में पैसा नहीं बनता। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, मार्केट करेक्ट होता जाता है, और जब हाईएस्ट लेवल पे अनसर्टेनिटी होती है ना, तब मैक्सिमम अल्फा बनता है। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है कि नहीं पता, मगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है ना, गोल्ड ऊपर होता है और इक्विटी मार्केट नीचे होता है, और तब है ना जनरल पब्लिक गोल्ड खरीदते हैं। अभी आप देखो गोल्ड की इंक्वायरी बढ़ गई होगी आपके पास, और गोल्ड के टारगेट आने लगे होंगे। एक्चुअली दिस आर द टाइम टू लुक कॉन्ट्रा, ठीक है। अब इतनी सारी गोल्ड की इंक्वायरी आ रही है, आपको इक्विटी सजेस्ट करना है, डिफिकल्ट काम है। इस बिहेवियर को बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर। क्या बोलते हैं? इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर। यू विल लुक लाइक एन इडियट फॉर अ शॉर्ट टर्म, राइट। इसीलिए बिहेवियर एग्जीक्यूट करना भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू बी एन इडियट, है ना। एवरीबडी वुड लाइक टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर आर चेजिंग गोल्ड, बट एन इडियट फॉर अ शॉर्ट टर्म विल एक्चुअली मेक मनी इन लॉन्ग टर्म। आपको याद कराऊं, जब कोविड हुआ था, सब फार्मा बोल रहे थे, उस टाइम पे मेटल खरीदना is considered as an idiotic decision, but 3 साल बाद pharma was the worst performing sector and the metal was the best performing sector. So in investing, it is better to be idiot for a short term so that you can have good long term returns. So basically जितना uncertainty है उतना ही actually हमारा जरूरत भी ज्यादा होता है, और uncertainty is good level of investing because uncertainty से जब मार्केट क्लैरिटी की तरफ जाता है ना, मान लो 3 महीने बाद ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिए, एफआई ने वापस पैसा डालना शुरू कर दिया, राइट, और ये सारी चीजें हो गई, रुपी भी डेप्रिशिएट होना बंद हो गया, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ज्यादातर लोग क्लैरिटी के बाद इन्वेस्ट करेंगे। आई थिंक इट इज बेटर टू इन्वेस्ट व्हेन देयर इज लेस ऑफ क्लैरिटी, व्हेन देयर इज फॉग अराउंड। सो दैट इज व्हाट इज माय वे ऑफ लुकिंग द मार्केट।